Dear students, good afternoon to all. This is Neha, your course teacher, and our course title is Farming System in Sustainable Agriculture, and course number is Agro 5222. So, our today's topic is factor affecting farming system, and today we will discuss about the physical factors. Okay, so in our previous lecture, we had already discussed about the economic factor affecting and the climatic factor affecting. Okay, so today we will discuss for physical factor affecting in detail. So we have different categories for physical affecting physical affecting farming system. So basically we can say the physical environmental factors affecting farming system. Various factors in the natural environment affect farming. मतलब बहुत सारे factors हैं and they could be affect to our farming system, we could say. Okay, so the first one is the topography. So what do you understand by topography? Basically topography is a soil basically, yeah, right. मतलब soil से relate हम कर सकते हैं कि that could be a topography relief, something like that. So soil and climatic are the major physical factors affecting farming system. So the topography or relief, the topography relates to how difficult it is to till land, soil erosion, and poor transportation networks and facilities, right? So poor transportations means सॉइल की टोपोग्राफी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन कैसे, सपोज़ अगर बहुत ही हिली एरियाज़ हैं, ठीक है, बहुत ही हिली एरियाज़ है तो वहाँ पे टिलेज इम्प्लीमेंट चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन पुअर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हो जाएगी. तो हम अगर उस एरिया में उनके अकॉर्डिंगली हमें कमोडिटी प्राइस डिसाइड करना होगा, या हम उस तरीके की हमें फार्मिंग सिस्टम अपनानी पड़ेगी जो रिलायबल हो उस एरिया के लिए, ठीक है. So agriculture can be mechanized depending on the topography of the land to be used. It is impossible to use for machinery on slopy land or rough hilly slopes. Okay, so topography is relatable to soil. Okay, soil and climate also. So पर्टिकुलर एरिया की सॉइल कैसी है, ठीक है, हिली रीजन है या बहुत ज़्यादा रफ सॉइल है जिसमें टीलेज इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, टीलेज बड़े बड़े टीलेज इम्प्लीमेंट या मैकेनिकल जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं उनको चलाने के लिए. ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज क्लाइमेट. क्लाइमेट इज ऑल्सो द climatic factors affecting, but this is the topography under the category of topography. Okay, so climate and soils are the comes under the category of topography, we can say. So climatic factors such as rainfall and temperature affect farming system, and as we can discuss above in our previous lecture also. Okay, and the third factor which is mostly affect in our farming system, it is a soil. Okay, so crop thrive in rich loamy soil with proper drainage. Crops absorb food and water through their roots from soil. They also enjoy plant support. Soil with poor texture and harsh chemical are low in productivity. Therefore, poor soil inhibit plant growth and development. Okay, other important factors affecting farming across the globe include education or knowledge on farming technology, political factors such as government policies, and social factors such as land ownership and inheritance and type of farming in practiced. Okay, so factors हैं, there are some different miscellaneous factor and they are affected our farming system, we can say. Likewise, knowledge and education, if farmers don't have any knowledge and irrigation, then क्या होगा, आपका स्किल अच्छे से नहीं होगी, फार्मिंग सिस्टम नहीं होगी, तो क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे, उस चीज़ को अच्छे से संभाल नहीं पाएंगे, ठीक है, प्रॉपर कल्टीवेशन नहीं कर पाएंगे. पॉलिटिकल फैक्टर्स में क्या आएगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है, हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसीज़ होती है अकॉर्डिंग टू दी क्रॉप एंड अदर एंटरप्राइजेस में जो भी पॉलिसीज़ होती है, अगर उसकी अवेयरनेस नहीं होगी तो हम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे, ठीक है. एंड देन लैंड ओनरशिप, मतलब बहुत सारे पुअर फार्मर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, लीच में लैंड लेते हैं,
है ना। लीज में लैंड लेते हैं और उनके लैंड पे क्या करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, और उस कल्टीवेशन से फिर वो क्या करते हैं, हाफ करते हैं, या उनका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हमने आपकी ज़मीन को लीज में लिया है और हम उसे क्या करेंगे, उसमें कल्टीवेशन करेंगे, और हाफ जो प्रोडक्शन होगा या 80% प्रोडक्शन होगा या 70% प्रोडक्शन होगा वो ओनर का होगा, और 30% प्रोडक्शन जो होगा वो क्या होगा, जिसने फार्मिंग की है उसका होगा, फार्मर का होगा, राइट। So it is important for farmers to understand these factors in the given areas they wish to embark on farming to be able to choose the right crop to grow. Choosing the right crop for any given agricultural reason is a key to high crop growth and yield. Okay? तो क्या होता है, राइट क्रॉप को एग्रीकल्चरल रीजन पे हमें चूज करना सबसे बड़ा की फैक्टर है ये हाई यील्ड और क्रॉप के ग्रोथ के लिए, है ना। जैसे मैं आपको हमेशा शुरू से बताते आ रही हूँ कि हमें उस तरीके के क्रॉप्स लेने रहते हैं पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे उसकी अवेलेबिलिटी हो, सारे उसके रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करे, है ना। तो उस तरीके के क्रॉप्स हमें क्या करना होता है, लेना होता है। तो अगर हम चूज़ करेंगे, ठीक है, चूज़ करेंगे कोई भी क्रॉप को, तो वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू दी एरिया जो है वो क्या होगा, उसके ग्रोथ, यील्ड और डेवलपमेंट पे डिपेंड करेगा किस तरीके की क्रॉप हमने चूज़ की है, ठीक है। तो सॉइल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो हैं वो इस तरीके से क्या करते हैं, फार्मिंग सिस्टम को अफेक्ट करते हैं। ओके, सो लेट अस मूव। ओके, then the another miscellaneous factor which is market and choice. So we take first one, which is market. So the market is very important for a farmer. He must know that he is going to be able to sell his produce at a good price in order to make a profit. ठीक है, मतलब ये होता है कि उसने अपने जो भी प्रोड्यूस हैं या भी जो भी प्रोडक्शन उसका हुआ है उसको एक गुड प्राइस पे बेचे, जिससे उसको क्या हो, एक प्रॉपर प्रॉफिट हो, है ना। अगर उसने जितना इनपुट लगाया उससे वो प्रॉफिट निकालेगा तब उसे कोई फ़ायदा है, अदरवाइज़ फिर क्रॉप के प्रोडक्शन का या नई टेक्नोलॉजी का या सिस्टमेटिक कल्टीवेशन करने का बेनिफिट नहीं है कहीं पे भी, राइट। दैन द सेकेंड इज quotas and subsidies have been brought in to try to help farmers as the price of their produce have fallen over the last 20 years. Then the farmer is increasingly have to decide exactly what they are going to grow by the price that they will get their produce. And the another thing is choice. ठीक है, मतलब आपको मार्केट में प्राइस को, एक कमोडिटी प्राइस को अकॉर्डिंग टू दी मार्केट आपको डिसाइड करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा कमोडिटी प्राइस को, ठीक है। पहला चीज़ ये है, पहला कैटेगरी ये हम कह सकते हैं। सेकंड कैटेगरी क्या होगी, जो कोटाज होते हैं एंड जो सब्सिडीज़ होती है, ठीक है। कोटाज जो एक प्रॉपर कोटा मिलता है ना, मतलब स्मॉल फार्मर के लिए अलग, मार्जिनल फार्मर के लिए अलग, लार्ज फार्मर के लिए अलग सब्सिडीज़ मिलती हैं, तो उस पर अवेयरनेस होगा हमें कि हम किस तरीके वो फार्मर को हेल्प कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस लेने का, ठीक है। और एक होता है कि हमें एक ऐसे फैक्टर्स या एक ऐसे प्राइस किसी भी कमोडिटी का या किसी भी प्रोड्यूस का हमें डिसाइड करना होता है जिसका एक इंडस्ट्रियल वैल्यू हो, मार्केट हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली उस कमोडिटी का प्राइस क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि उसका डिमांड है मार्केट में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज चॉइस. सो द फार्मर्स मे हैव अ नंबर ऑफ चॉइसेस ओवर विच टाइप ऑफ फार्मिंग ही इज़ गोइंग टू फॉलो. ठीक है, मतलब फार्मर के पास एक चॉइस होती है, चयन करने की एक कैपेबिलिटी होती है कह सकते हैं हम, या एक उसके पास इच्छा होती है कि वो अपने इच्छा के अकॉर्डिंगली क्या करे, फार्मिंग सिस्टम को कैसे एग्जीक्यूट करेगा उसका चॉइस करे. सो नॉर्मली दिस इज डिटरमाइंड बाय द क्लाइमेट, सॉइल्स एंड रिलीफ. However, farmers are increasingly having to turn to farming crops or animals that will bring them the most money rather than which ones may be best suited to the area. मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मनी बनाने का, पैसे बनाने का क्या है कि आपको सूटेबल एरिया चूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, क्रॉपिंग सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, क्रॉपिंग सिस्टम या जो भी एनिमल क्रॉपिंग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आपको लेने के लिए, अधिक से अधिक प्रॉफिट लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सूटेड एरिया जो उस पर्टिकुलर एरिया के लिए सूट हो, ऐसी फार्मिंग सिस्टम लेआउट प्लानिंग तैयार करनी होगी और फिर उस प्लानिंग के अकॉर्डिंगली आपको इम्प्लीमेंट करना होगा. राइट. एंड द नेक्स्ट फैक्टर इज पॉलिटिक्स.
So government and international farming policies have had a huge impact on many farmers around the world. And Europe, the common agricultural policy and EU regulations have meant that farmers are protected and their produce will be bought. However, they have also meant some farmers have had to completely change what they are growing to suit the new regulations. ओके, सो पॉलिटिक्स रेगुलेशंस, रूल एंड रेगुलेशंस का ध्यान में रख के हमें क्या करना पड़ेगा, पॉलिसीज़ को फॉलो अप करना पड़ेगा. ठीक है, जैसी पॉलिसी होगी अकॉर्डिंगली हमें उसको क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा. दैन the relief of the land is a very important factors in determining the type of agricultural activity that can take place on it. Flat shattered areas are usually best for crops as it is easy to use machineries and there will be the best climatic conditions for crop growth. Steep slopes are more likely to be used for sheep and cattle farming. मतलब जो हिली एरियाज़ होते हैं बेसिकली, ठीक है, हम आगे इंटीग्रेटेड फार्मिंग में पढ़ेंगे. जो हिली एरियाज़ होते हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं, डेयरी प्लस लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन करते हैं, है ना. क्योंकि फार्मिंग सिस्टम क्या होती है, वहाँ पे पुअर ट्रांसपोर्टेशन होता है ना. मतलब टीलेज ऑपरेशन करने के लिए, बड़ी बड़ी मशीनरीज को चलाने के लिए वहाँ पे क्या होता है, दिक्कतें आती है. इस वजह से हम इस तरीके के एरिया में क्या करते हैं, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट को हम क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं. ठीक है, विद अलॉन्ग विद द डेयरी फार्मिंग. ऑब्वियसली अगर हम लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट कर रहे हैं तो किसके साथ करेंगे, और भी वहाँ पे जो एंटरप्राइजेस जुड़ा होगा वो क्या होगा, हमारा डेयरी फार्मिंग होगा. Right, so such as in the valley of South Wales. However, in countries such as Indonesia, the steep slopes have been dressed to allow rice to grow. ठीक है, तो अलग अलग फार्मिंग सिस्टम हम अपनाते हैं अकॉर्डिंग टू दी स्लोपी एरियाज, फ्लैट एरियाज, पैरेलल एरियाज, शैटर्ड एरियाज. ठीक है, तो उसके हिसाब से हम अगर अपना प्लान लेआउट बनाते हैं, उस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, प्रॉफिट होता है. ओके, so this is enough for today, and finally we had completed our factor affecting farming system. So we have 3 categories. Again we will revise that some kind of economic factors and the physical factors and the climatic factors. Okay, so in climatic factor we have different climatic elements like temperature, light, humidity, and somewhere precipitation, condensation, like that. And then economic factors like some government policies, subsidies. Okay, so these are the factor affecting farming system. This is enough for today. I hope you all got the sense. Thank you very much. Till then, be safe, take care. Thank you.